Hello students, how are you? I am fine. Myself Avik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture we are going to discuss binomial theorem chapter for class 11. Okay, so I think already one or two lectures were already given, and the various concepts and various things were discussed in that lectures, and the same thing will be happened in this lecture also. Some problems will be solved which are very important for the board level exam, that means for the school level final level exams, and actually these conceptual questions will also be solved, which are very important for building the more and more concepts regarding this binomial theorem concept. Okay, so very good evening to all. We will start some questions from this binomial theorem chapter, which are very important. Just remember this thing. Okay, now just write the first question. Just write the first question. Find the fourth term from the just write the question. Find the fourth term from the end. Find the fourth term from the end in the expansion of. Find the fourth term from the end in the expansion of. Find the fourth term from the end of the expansion of the expansion. एक एक्सपेंशन दिया गया है of the expansion 3 by x square minus x cube by 6 whole to the power 7. That means one expansion is given, and just you need to find the fourth term from the end, not from the beginning. Okay, just remember this word. This word is very important. Fourth term from the end. पीछे से आपको fourth term निकालना है, ठीक है? तो this fourth term from the beginning and the end term, actually this from fourth term from the end, both the concepts are dependent on the total number of terms. Total number of terms के ऊपर ही ये दोनों कॉन्सेप्ट, पहले से फोर्थ टर्म हो पीछे से फोर्थ टर्म हो, दोनों डिपेंड करता है. Just remember this thing. And as I told you, whatever the power you have, the number of terms will be what? Will be actually this one extra. That means one extra term will come. Okay, that means whatever the power you have, the number of terms will be plus 1. Okay, that means power plus 1. So here given 3 by x square minus x cube by 6 whole to the power 7. So here I think here n equals to what? 7. So number of terms equals to 7 plus 1 equals to what? 8. Number of terms यहाँ पर क्या होगा? 8 होगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टर्म्स. पीछे से फोर्थ टर्म है कि नहीं? दैट मीन्स 1 2 3 4, ये है आपका पीछे से फोर्थ. यहां से आएंगे तो फोर्थ ही. अब सामने से जाओ तो 1 2 3 4 5, दैट मीन्स सामने से जाएंगे तो ये फिफ्थ टर्म बन रहा है. सामने से जाएंगे तो क्या टर्म? फिफ्थ टर्म बन रहा है. अब पीछे से फोर्थ टर्म, पीछे से काउंट करना जो है उसके लिए जो फॉर्मूला जो है वो बनाया नहीं गया. ठीक है, जैसे r प्लस वन टर्म, rth टर्म जो है वो पहले से काउंट होता है फ्रॉम द बिगिनिंग. एंड से ये फॉर्मूला नहीं बनाया गया है.
ठीक है। अब एंड से जो दिया जाता है ना, दैट मीन्स फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, 10th टर्म फ्रॉम द एंड। ओके, ये एंड से जो काउंट होता है वो कैसे काउंट होता है? आपको एंड से, जो ये फोर्थ टर्म एंड से बोला गया, आपको काउंट करना है फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम द बिगिनिंग ये कौन सा टर्म होगा? फिफ्थ टर्म होगा। दैट मीन्स आपको फिफ्थ टर्म निकाल के दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। अब बोलोगे सर ये तो पावर छोटा है, नंबर ऑफ टर्म्स छोटा है, इसलिए पीछे से फोर्थ टर्म हम लोगों ने ड्रॉ करके देख लिया, तो सामने से होगा फिफ्थ टर्म, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब बड़ा पावर अगर ज्यादा हो, 20 हो, तो ऐसा डंडा ड्रॉ करके दिखेंगे क्या है? नहीं, इसके लिए भी एक शॉर्टकट प्रोसेस है, और ये प्रोसेस जो है यहां से ही हम लोग निकालें। जस्ट सी, पीछे से फोर्थ टर्म है कि नहीं? अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 8। तो पीछे से फोर्थ टर्म, दैट मीन्स 4 माइनस प्लस 1। दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। 8 मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, पीछे से फोर्थ टर्म, दैट मीन्स 4 टर्म को माइनस कर दो, ठीक है ना। अब 4 टर्म को माइनस करोगे तभी तो सामने से मिलेगा ना आपको, और प्लस 1, क्योंकि जो पावर जितना होता है उससे ए ज्यादा होता है दिस नंबर ऑफ टर्म्स, इसलिए प्लस 1 करना पड़ता है। सो दैट मीन्स पीछे से फोर्थ टर्म, मीन्स इसका आंसर क्या रहा है? देखो 5 आ रहा है, फिर 4 मारे कि नहीं? फिर 4 मारे। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको सिर्फ याद रखना है, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म से माइनस करना है जितना टर्म आपको निकालना है। दैट मीन्स पीछे से फिफ्थ टर्म है, दैट मीन्स 5 माइनस करना है प्लस 1, ठीक है। तो जो भी हो आपको यही स्ट्रक्चर अप्लाई करना है। अब बड़ा ज्यादा पावर हो तो ऐसा डंडा आप ड्रॉ करके नहीं देखेंगे, यहाँ पर छोटा पावर है इसलिए हम लोगों ने डंडा ड्रॉ करके देख लिया है कि नहीं ये ऐसा ऐसा टर्म होगा, फिर सामने से फिफ्थ टर्म होगा, हम लोगों को पता चल गया था पहले, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है? हियर फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, so from the beginning term is what? 8 minus 4 plus 1, that means fifth term। that means आपको so T5 निकालना है एक्चुअली, पीछे से फोर्थ टर्म, that means सामने से फिफ्थ टर्म, T5। तो T5 को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं? 4 प्लस 5, ठीक है। आर का वैल्यू क्या है? यहाँ पर 4 है, सो बस निकाल लो। यहाँ पर क्या होगा? n तो मतलब यहाँ पर 7 है, ओके। तो 7c4 3/x² होल टू द पावर 7 माइनस 4, फिर माइनस x³/6 होल टू द पावर 4, ठीक है। अब 7c4 कैलकुलेशन कैसे करते हैं? फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 4। अब 3 टू द पावर क्यूब बाई x टू द पावर 6 इंटू माइनस के ऊपर इवन पावर है तो माइनस का ऑब्जर्व हो जाता है, दैट मींस x टू द पावर 12 बाई, यहाँ पर तो क्या है? 3 2 6, ओके। x टू द पावर 12 बाई क्या है? 6 टू द पावर 4, ठीक है। 6 टू द पावर 4। नाउ अब जो है देखो आंसर कितना आ रहा है? अच्छा देखो, सो T5 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 7 को तोड़ के 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 में स्टॉप करके रख दो, क्योंकि नीचे एक फैक्टोरियल 4 है और फैक्टोरियल 3 है, इंटू 3 क्यूब बाई x टू द पावर 6 इंटू x टू द पावर 12 बाई 6 टू द पावर 4। यहां पर काटोगे तो ये कैंसिल होगा और T5 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3 को बांटेंगे तो ऐसा होगा, देखो तो 3 2 2 2 कैंसिल, दैट मींस
35 into 3 cube x to the power 6 by 6 to the power 4 है ना, that means 3 to the power 4, 2 to the power 4. तो ये कैंसिल, तो that means 35 x to the power 6 by नीचे एक 3 रहेगा और 4 16 32. ये होगा फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, इसका आंसर फिफ्थ टर्म का आंसर. दैट मींस पीछे से आपको काउंट और एक क्वेश्चन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एंट्रेंस, दैट मींस एग्जाम लेवल एंड फॉर द एंट्रेंस इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फाइंड n if the ratio of the fifth term from the beginning, find n का वैल्यू निकालना है. find n if the ratio find n, okay, find n if the ratio of fifth term from the beginning, okay, पहले से fifth term and fifth term from the end, पीछे से fifth term, ठीक है, of the expansion क्या है, fourth root of 2 plus 1 by fourth root of 3 whole to the power n, okay, is root 6 is to 1. That means one expansion is given and you need to find fifth term from the beginning and fifth term from the end. Okay, so what is the power here? N is the power. Value of n is not given. You need to find this value of n. Okay, just remember this thing. You need to find the value of n here. So how can you find? The question is there. How can you find the value of n here? Expansion is given. Okay, and the power is n. So number of terms will be what? N plus 1. Just remember this thing. Okay. Here given fourth root of 2 plus 1 by fourth root of 3 whole to the power n. So number of terms equals to n plus 1. Just remember this thing. Okay. Now fifth term from the end से आपको फिफ्थ टर्म निकालना है. दैट मीन्स व्हाट, मैंने क्या स्ट्रक्चर बोला था, पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिखना है. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहां पर, n प्लस 1. इससे माइनस कौन सा करना है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड है ना, तो 5 माइनस करना है, फिर प्लस 1 करना है. ठीक है. So that means यहां पर मुझे तो दिखाई दे रहा है n माइनस थर्ड टर्म. That means पीछे से फिफ्थ टर्म मतलब है सामने से n माइनस 3 टर्म, और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. That is from the beginning, ऐसे लिख लो, from the beginning ये हिसाब होगा. That is from the beginning ये हिसाब करना है आपको. ठीक है. So और एक है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, that means T5 फिफ्थ टर्म निकालना है. ठीक है. एक्सपांशन तो आपको गिवन है. अब T5 निकालो और ये निकालो, दोनों का रेशियो क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है. तो सबसे पहले कौन सा निकालना है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकालना है. तो निकालो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग.
निकालो. Here here T5, that means T4 plus 1. आपको तो ऐसे एक्सप्रेस करना है. That means R का वैल्यू तो एक कम होता है 4. That means ये R का वैल्यू होता है 4. ठीक है. तो यहां पर फॉर्मूला क्या है? ये तो n है. NC4 fourth root of 2 whole to the power n minus 4 1 by fourth root of 3 whole to the power 4. ठीक है. ये तो T5 है. अगेन और कौन सा निकालना है? T of n minus 3. n minus 3. दैट मीन्स इसको कैसे लिखना है? देखो +1 फॉर्म में तो आपको लिखना ही है. तो n minus 3 उसको देखो तो n minus 4 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं. +1 फॉर्म में तो आपको लिखना ही है क्योंकि r का वैल्यू आपको निकालना है पहले. विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ r यू कांट गेट द एग्जैक्ट टर्म हियर. ओके. सो दैट मींस t n minus 4 plus 1. n minus 3 है ना. -3 को -4 plus 1 लिखें तो क्या फर्क पड़ता है? बोथ आर सेम. तो यहां पर r का वैल्यू आपको मिल गया n minus 4. So NCR, okay, fourth root of 2 n minus 4, okay, and 1 by fourth root of 3 whole to the power n minus 4. Okay. Now according to the question, now according to the given question, now according to the question, T5 is to Tn minus 3 equals to root 6 is to 1. देख लेते हैं उसे. root 6 is to 1 again. root 6 is to 1. So T5 मतलब क्या निकला? NC4 fourth root of 2 whole to the power n minus 4 1 by fourth root of 3 whole to the power 4 is to NC n minus 4 fourth root of 2 whole to the power n minus n plus 4 1 by fourth root of 3 whole to the power n minus 4 equals to root 6 is to 1. ठीक है. अब कॉम्बिनेशन की एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन यूज करते हैं हम लोग. ये कॉम्बिनेशन चैप्टर जब करेंगे तब उसका जो इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे. जस्ट अभी देख के रखो, ये साइड में लिख के रखो. ठीक है. जैसे सपोज NCR, इसका जो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, और NCn minus R, इसका सेम रिजल्ट है. NCR और NCn minus R दोनों का सेम रिजल्ट है. दैट मीन्स NCR को हम लोग NCn minus R ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. कैसे? हम लोग एग्जांपल लेके यहां पर देख सकते हैं. कैसे देखो, सपोज एक एग्जांपल करते हैं. 7C4 इसका रिजल्ट निकालो और 7C क्या था? n minus R. दैट मींस 7 minus 4 3. ठीक है ना. ये 7 minus 4 है ना. 7 minus 4. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट 7 minus 4, तो दैट मींस 7C3. ये दोनों का आंसर निकालो. दोनों का आंसर निकाल के देखो, दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा. सो NCR को हम लोग NCn minus R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वी कैन राइट. सो द क्वेश्चन इज दैट व्हाई आर यू राइटिंग दिस थिंग and what is the actually this importance of this thing, and why should I change this NCR, that means NC यहाँ पर 4 है, NC4 to this NCn minus 4.
because if you want to cancel this thing, just you can see nc n minus 4, and if you express this nc4 like this form nc n minus 4, then I think nc n minus 4 nc n minus 4 will be cancelled. Calculation will be actually will be I think will be short. Okay, and for that just we are converting this nc4 to the nc n minus 4. Okay, now it is the main thing. So ये आप लिख के रखिए, हम लोग जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये हम लोग इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे. तो nc4, तो दैट मींस ये nc4 को हम लोग क्या लिखेंगे, nc n minus 4, फोर्थ रूट ऑफ 2 इक्वल टू द पावर n minus 4, 1 by फोर्थ रूट ऑफ 3, ये फोर्थ रूट ऑफ है, ठीक है, 4 जो है ऐसा है लिखना है, फोर्थ रूट ऑफ 4 होल डिवाइडेड बाई nc n minus 4, फोर्थ रूट ऑफ 2 इक्वल टू दी पावर, ये n तो कैंसिल, प्लस 4, और यहाँ पर 1 बाई फोर्थ रूट ऑफ 3 इक्वल टू दी पावर n minus 4 इक्वल्स टू रूट 6 बाई 1. ठीक है, रेशियो तो दैट मीन्स a is to b, that means what, a by b, you can write a by b. Okay, so here nc4 nc this part, two parts will be cancelled. So what is left here, what is left, बस see, यहाँ पर ये दोनों डिवाइड में है, दैट मीन्स पावर विल बी नेगेटिव, दैट मीन्स 4 रूट 2 होल टू दी पावर nc4 minus 4 into 1 by fourth root of 3, right? Fourth root of 3, that means 4 ऐसे, fourth root of 3 and 4 minus n this one and root 6 by 1. क्योंकि डिवाइड में रहता है तो पावर माइनस होता है, we know that very well. From the junior classes, I think we used to get this thing. Okay, so here fourth root of 2 whole to the power n minus 8 into 1 by fourth root of 3, और यहाँ पर 4 minus n minus plus 8 root 6 by 1. So that means fourth root of power n minus 8 into 1 by fourth root of 3 power जो minus 8, sorry, minus 8 minus this, okay, and root 6 by 1. Okay, तो fourth root of this n minus 8 and 1 by fourth root of 3 whole to the power minus common n minus 8 equals to root 6 by 1. ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखो see 2 to the power n minus 8 by 4 ऐसे लिख सकते हैं, और इधर 1 by 3 to the power minus n minus 8 by 4 ऐसे लिखते हैं, रूट 6 by 1. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, अच्छा, तो यहां पर देखो ये 2 to the power n minus 8 by 4 into, ये नेगेटिव पावर है ना, अगर ऊपर लेके चले जाए 3 to the power n minus 8 by 4 ऐसे लिख सकते हैं, और ये 6 to the power हाफ ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं. तो लेफ्ट साइड में देखो तो दोनों के ऊपर पावर सेम है, दैट मींस 6 to the power n minus 8 by 4, 6 to the power हाफ ऐसे लिख सकते हैं. कैन आई राइट दिस लाइन? So both side exponent same है, that means power will be equal. So n minus that means ऐसे 2
टू द पावर x इक्वल्स टू 2 क्यूब, तो 2 तो यहाँ पर सेम है, तो आंसर विल बी x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3. Same thing, power will be same. This way actually. This n minus 8 equals to 2. There is n equals to 10. So the value of n will be 10 here. This is the final answer. ठीक है, so it is your final answer. Very important question. Just you need to solve this question with proper attention. Okay. Now, next question. Find the middle term in the expansion. Find the middle term in the expansion. Find the middle term. Find the middle term in the expansion. Find the middle term in the expansion. Find the middle term. Middle term in the expansion. Find the middle term in the expansion. 3x minus x cube by 6. 3x minus x cube by 6 whole to the power 7. आपको मिडिल टर्म निकालना है इस एक्सपेंशन का, ठीक है. सो एज आई टोल्ड यू, दिस नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स will be dependent on the total number of terms. If the total number of terms is even, अगर जोड़ हुआ, अगर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं अगर वो जोड़ हुआ तो क्या होता है, दैट मीन्स इवन जब होता है तब नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स विल बी 2 होगा. और अगर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होता है तो मिडिल टर्म 1 मिलेगा आपको. दैट मीन्स गिवन, ऐसे लिखो, given 3x minus x cube by 6 whole to the power 7. So here n equals to कितना है, 7. तो number of terms कितना होगा, number of terms equals to 7 plus 1, that is 8, और वो भी इवन है, ठीक है. तो अगर इवन है तो क्या करें, 2 मिडिल टर्म होगा. सो two middle terms will be there. 8 by 2 12th term and 8 by 2 plus 1 12th term. यही तो है ना दोनों, यही तो है दोनों. क्या था फॉर्मूला, n plus 1 by 12th term और दूसरा था n plus 1 by 2 plus 1. ये दो ही तो मिडिल टर्म था. तो n plus 1 मतलब क्या है, 8 है ना यहाँ पर. तो n plus 1 by 2 that means 8 by 2. n plus 1 by 2 plus 1 that means 8 by 2 plus 1. तो यहां से क्या निकलता है, 4th टर्म एंड 5th टर्म, राइट. ये दोनों आपका मिडिल टर्म होगा. सो T4 that means T3 plus 1, ऐसे आपको एक्सप्रेस करना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट. सो 7C3 3x to the power 7 minus 3, माइनस को तो आप काउंट करेंगे ऐसे 3, तो उसका भी कैलकुलेशन 7C3 इंटू 3 to the power 4 into x to the power 4 into माइनस साइन तो रहेगा बिकॉज ऑड नंबर पावर, दैट मीन्स माइनस बाहर कर दो, x to the power 9 by 6 to the power 3. ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन करना है, तो इसका कैलकुलेशन करना है और तो बाकी तो कुछ नहीं है. ठीक है,
कैलकुलेशन पार्ट है। ओके, तो मिडिल टर्म कैसे आया ये हो गया क्लियर। तो यहां पर T4 इक्वल्स टू -7C3 इंटू, यहां पर x टू दी पावर 4 है, यहां पर x टू दी पावर 9 है, दैट मींस x टू दी पावर 13, ठीक है। और यहां पर 3 टू दी पावर 4 है और नीचे 1/3 क्यूब इंटू 2 क्यूब, 6 क्यूब है ना, तोड़ दिया मैंने। तो -7C3 x टू दी पावर 13, यहां पर ऐसे काटोगे, ऊपर चला आएगा 3/2 क्यूब मतलब 8, दैट मींस -3/8 7C3 का जो कैलकुलेशन है वो करो 7C3 का। नाउ दूसरा क्या है T5 मतलब T4 प्लस 1, तो T4 प्लस 1 7C4 3x टू द पावर क्यूब एंड माइनस x क्यूब बाई 6 होल टू द पावर 4, ठीक है। सो 7C4 3 क्यूब x क्यूब, और यहां पर माइनस नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर पावर है, x टू द पावर 12 बाई 6 टू द पावर 4। सो यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो 7C4 3 क्यूब इंटू x क्यूब, ये x टू द पावर 15 कर दो, और नीचे जो है 3 टू द पावर 4 2 टू द पावर 4, ये काटेंगे ये, ठीक है। यहां पर तो यहां पर क्या होगा 7C4 इंटू x टू दी पावर 15 बाई 2 टू दी पावर 4, तो मतलब 16 है, ठीक है, 16 इंटू 3, ठीक है। तो बस अभी इसका क्या करना है, अभी तो ये जस्ट 7C4 और बाहर जो है 1/48, 7C4 का कैलकुलेशन कर लो x टू दी पावर 15, मीन्स मिडिल टर्म 2 मिला। फर्स्ट मिडिल टर्म आपका ये है, सेकंड मिडिल टर्म आपका ये है, ठीक है। और 7C3 और 7C4 दोनों का आंसर जरूरत नहीं है, 7C3 का आंसर और 7C4 का आंसर सेम ही होगा। लास्ट क्वेश्चन में मैंने दिखाया था 7C3 और 7C4 का आंसर जो है वो सेम है, बोथ आर सेम एक्चुअली, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। ओके, इसका आंसर निकाल लो, डायरेक्ट बिठाओ, इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट एक वेरी important and little bit tough also. Okay, just write this question. Show that the middle term in the expansion of, this question is very favorite to me, and whenever this exam questions used to be set for the different students and for the different exams, this question used to be given. So this question is very important. So very important. देखने में बहुत सुंदर लगता है। देखो, show that the middle term in the expansion, show that the middle term in the expansion 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 1 plus x whole to the power twice n, 1 plus x whole to the power twice n is 1 into 3 into 5 into ... 2n minus 3 by factorial n into 2 to the power n x to the power n.
ठीक है, देखो क्वेश्चन भी रट्टा मारते हैं, इतना दिया क्वेश्चन भी याद रहेगा। देखो 1 इंटू तो 2n माइनस, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये एक काम करो, यहाँ पर 2n माइनस 1 दे दो, 2n माइनस 1 दे दो, ठीक है। अच्छा अब देखो गिवन एक्सपांशन, थोड़ा सीरियसली देखो, गिवन 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ट्वाइस है, मिडिल टर्म निकालना है ना, मिडिल टर्म। सो हियर पावर कितना है, ट्वाइस n है। सो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, ट्वाइस n प्लस 1। एम आई राइट? अब मुझे बोलो ट्वाइस n ये के इवन नंबर है या ऑड नंबर है? एनी नंबर, if any number will be in the multiplication form of 2, then this number will be even number, obviously. Nobody can change it. Okay, if any number can be expressed I think in the form of 2 into something, okay, just that means if any number can be expressed in the multiplication form of 2, then this number can be exclaimed as what? Even number. So twice n is even number. So ये जो है वो even number होगा obviously। अब even number के साथ 1 प्लस करेंगे, आपको कौन सा नंबर मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 4 एक इवन नंबर है, उसके साथ प्लस 1 करेंगे तो 5 मिलेगा। जैसे 8 इवन नंबर है, उसके साथ प्लस 1 करेंगे तो 9 इज ऑड नंबर, ठीक है। जैसे 12 इवन नंबर है, प्लस 1 कर दो, आंसर है 13 is odd number। That means if 1 is added with the even number, then the number which will be coming, that will be your odd number, okay। So that means this twice n plus 1 is odd number, and according to the concept, whenever this number of terms will be odd, then number of middle terms will be, how much middle terms will be there, how many middle terms will be there, only one middle term will be there. If you have number of terms as odd, then I think one middle term will be there। So middle term will be कैसा होता है, will be number of terms, फॉर्मूला पता है, number of terms plus 1 by 2, 12th term। यही तो होता है, जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होता है तब नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स ऐसे तो निकालते हैं। तो दैट मीन्स, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म कितना है, ट्वाइस n प्लस 1 प्लस 1 बाई 2। दैट मीन्स ट्वाइस n प्लस 2 बाई 2, ओके। सो आई थिंक n प्लस 1 टर्म, n प्लस 1 टर्म। तो यहाँ पर ये 2 कॉमन लेके 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 कॉमन आएगा, 2 कैंसिल होगा तो n प्लस 1 रहेगा। सो दैट मींस दिस n प्लस 1 टर्म जो होता है वो मिडिल टर्म होता है यहाँ पे, ठीक है। सो इफ यू वांट टू फाइंड दैट n प्लस 1 टर्म, सो tn प्लस 1 इक्वल्स टू ट्वाइस n इज द पावर, पावर क्या है, ट्वाइस n, c n, यहां पर तो ऑलरेडी प्लस 1 फॉर्म में है। So no need to express this t, this part in the form of plus 1. Already it is in the form of plus 1. Tn plus 1. So here r का वैल्यू कितना होता है, n होगा। यहाँ पर r का वैल्यू n है, तो NCR, n मतलब तो जो पावर रहता है वो पावर क्या है, ट्वाइस n, ट्वाइस n CR, r मतलब n, फिर 1 to the power ट्वाइस n माइनस n, फिर x to the power n। So that is factorial twice n by factorial n into factorial twice n minus n x to the power n, ठीक है। ये तो फॉर्मूला होता है कि नहीं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, तो tn plus 1 equals to, ओके,
फैक्टोरियल ट्वाइस n बाय फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n इंटू एक्स टू द पावर n। सो अगर मैं अभी फैक्टोरियल ट्वाइस n इसको अगर मैं तोड़ू, मैंने क्या बोला था, किसी भी फैक्टोरियल को तोड़ने से क्या होता है, वहां से शुरू होता है 1 1 1 1 करके डिक्रीज होता रहता है एंड देन इट विल बी फिनिश्ड एट 1 ओनली। दैट मींस ट्वाइस n, 1 डिक्रीज कर दो, ट्वाइस n माइनस 1, फिर से 1 डिक्रीज, ट्वाइस n माइनस 2, ट्वाइस n माइनस 3, ट्वाइस n माइनस 4, ओके, डॉट 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 5 4 3 2 1। नीचे जो है फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n रख देते हैं और मल्टीप्लीकेशन में x टू द पावर n तो ही, ठीक है। नाउ यू टेल मी amongst of these factors, which factors are the even number factors? कौन सा इवन नंबर होता है? जिस फैक्टर्स में इवन नंबर इंक्लूडेड है, सब इवन नंबर ही हैं, वो सब फैक्टर्स इवन नंबर होगा। जहां पर ऑड नंबर इंक्लूडेड है वहां पर ऑड नंबर होगा। जैसे देखो ट्वाइस n इवन नंबर, ट्वाइस n माइनस 2 इवन नंबर, ट्वाइस n माइनस 4 इवन नंबर, ऐसे करते 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 4 इज इवन नंबर, 2 इज इवन नंबर। अब 5 तो इवन नंबर नहीं होता है, ट्वाइस n माइनस 3 इवन नंबर नहीं होता है, ठीक है। माइनस 3 ऑड नंबर माइनस कर रहे हो, दैट मींस ऑड नंबर ही मिलेगा। किसी भी इवन नंबर से अगर आप ऑड नंबर माइनस कर रहे हो, दैट मींस रिजल्टेंट विल बी ऑड नंबर। तो इवन नंबर्स को एक साथ लिखो, ट्वाइस n माइनस 2, ट्वाइस n माइनस 4, ऐसे करते करते 4 इंटू 2 उसको एक जगह रखो और बाकी ऑड फैक्टर्स को, दैट मींस ट्वाइस n माइनस 1, ट्वाइस n माइनस 3, डॉट 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 5 इंटू 3 इंटू 1, ब्रैकेट क्लोज मारो। नीचे जो है फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, और इधर तो x टू द पावर n तो ही, ओके। नाउ these are all even numbers, that means these are all multiple of 2, that means this term divisible by 2, twice n divisible by 2 according to the concept even numbers always divisible by 2. So if these numbers are even number, that means this all numbers must be divisible by 2 only, okay, not only by 2 but divisible by 2, okay, by 2 divisible 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 by 2, हर एक नंबर यहां पर divisible by 2 होगा, ठीक। Now you tell me how many terms are there, कितना टर्म होता है, एक सीक्वेंस है यहां पर, सीक्वेंस में कितना टर्म होता है, obviously n number of terms, arithmetic progression, geometric progression, okay, number of terms will be n number of terms are there because it is a sequence, okay। So now एक काम करेंगे हम लोग, ये हर एक नंबर से हम लोग एक 2 उधार लेंगे, एक एक 2 करके उधार लेंगे। कैसे लेंगे, यहां से एक 2 उधार लेंगे, यहां से एक 2 उधार लेंगे, यहां से एक 2, ऐसे करते करते यहां से भी एक 2, यहां से भी एक 2 हम लोग उधार लेंगे। कैसे, देखो हम लोग कुछ इवन नंबर्स कलेक्ट कर रहे हैं, 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, ये सब इवन नंबर्स है। 8 को हम लोग 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 6 को हम लोग 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 2 को हम लोग 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हर एक नंबर में ही एक एक 2 तो कॉमन है। अब यहां से एक 2 उधार ले रहे हैं, यहां से एक 2 उधार ले रहे हैं, यहां से एक 2 उधार ले रहे हैं, यहां से एक 2 उधार, कितना 2 उधार लिया तुमने, 4 2, दैट मीन्स 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं ना, डायरेक्टली लिख लिया। बाकी जो रह गया वो हम लोग लिख लेंगे ब्रैकेट में। बाकी इसमें कितना रह गया, 4 इंटू, इसमें कितना रह गया 3, उसमें कितना रह गया 2, इसमें कितना रह गया, ऐसे लिख सकते हैं ना। सिमिलरली दीज आर ऑल इवन नंबर्स, तो वहां से भी एक 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 2 करके हम लोग उधार ले सकते हैं। एंड हाउ मेनी 2s विल बी देयर, n नंबर ऑफ 2s, दैट मींस 2 टू द पावर n,
बाकी क्या रहेगा, यहां से n रहेगा, यहां से रहेगा n-1। कैसे, देखो ट्वाइस n-2 है ना, 2 अगर मैं कॉमन लू n-1 तो उधर तो मैंने 2 ले लिया, बाकी कितना रहेगा n-1। यहां से ऐसे ही n-2 रहेगा, ये अगर 4 है तो 2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ऐसा रहेगा n-2, 2 तो मैंने ले लिया, n-2 तो बाहर रहेगा, डॉट 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 4 से मैंने 2 ले लिया, दैट मींस 2 से मैंने ले लिया दिस। ठीक है, नाउ इफ यू राइट दिस टर्म systematically, that means 1 into 3 into 5 into dot 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 into twice n-1 सीक्वेंस को तो उल्टा करके लिख दिया है। ठीक है, नीचे जो है फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n और उधर होगा x टू द पावर n। ओके, ठीक है। अब ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है, कैन यू राइट लाइक फैक्टोरियल n हियर, ये फैक्टोरियल n है ना, देखो तो n, n-1, n-2, ऐसे करते करते 1 में स्टॉप हो गया जाके, तो ये क्या है, फैक्टोरियल n नहीं है क्या, सो दैट मींस 2 to the power n into factorial n into 1 into 3 into 5 into dot 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 twice n-1 whole divided by factorial n into factorial n, factorial n कैंसिल, बाहर तो यहाँ पर x to the power n तो ही। अब जो है, जो फाइनल लाइन बन गया यहाँ पर, just you need to write this final line, so the middle term is, so the middle term is, so Pn plus 1 equals to 1 into 3 into 5 into dot 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 into twice n-1 whole by factorial n 2 to the power n into x to the power n। यही तो आपको प्रूफ करना था शायद, है कि नहीं, प्रूफ, हाँ? I think this question was supposed to be proved, so it is proved। Okay, now और एक टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, ओके, तो इसके बाद आज स्टॉप रखेंगे। Find the coefficient of x to the power 10, find the coefficient of x to the power 10, find the coefficient of, just write the question, this question is very interesting, that you can see, this type of questions are very very important, and that's why every time this question is to be given, okay, and the scenario actually, the scenario is very much impressive, and the looks of this question is very unique, and that's why this question is very very important। Okay, find the coefficient of, coefficient है ना, find the coefficient of, find the coefficient of x to the power what, 10 in the expansion, in the expansion 2x square minus 3 by x whole to the power 11, 11 है ना। अच्छा, यहां पर in this expansion, actually using binomial theorem you can expand this part, okay, so after expanding this part in one term x to the power 10 will be there, मतलब एक्सपांड करने के बाद किसी न किसी टर्म में तो आपको x to the power 10 तो मिलेगा, ठीक है। x to the power 10 मिलने के बाद x to the power 10 के साथ जो कोफिशिएंट है that will be your answer, okay। तो हम लोग के पास दो प्रोसेस है, एक तो प्रोसेस है क्या, इसको पूरा एक्सपांड मारो, पूरा एक्सपांड मारो, एक्सपांड मारने से ही तो है मिलेगा आपको, लेकिन 11 है ना, बहुत सारा टर्म्स से मिलेगा, बहुत सारा कैलकुलेशंस भी होगा, है कि नहीं। बट आप अगर शॉर्टकट रास्ते में नहीं जाना चाहते तो आप ऐसे ही फॉर्मूले करेंगे, एक्सपांड करेंगे, उसको पूरा एक्सपांड करेंगे। अब एक्सपांड करने के बाद आपके आंखों के सामने तो इस टर्म में x to the power 10 है, दैट मींस द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 10 विल बी द आंसर, दैट मींस उसके साथ जो भी कोफिशिएंट रहेगा वही होगा उसका आपका आंसर, है कि नहीं। शॉर्टकट रास्ता भी एक है, जैसे हम लोग अननोन्स लेते हैं, लेट
है, दिस नंबर इज x। यहां पर भी ऐसे कर सकते हैं आप। लेट x टू द पावर 10 कौन से टर्म में है, कहां पर है, हम लोग नहीं जानते, वी डोंट नो। ओके, सो दैट्स व्हाई we need to consider that we need to assume, actually we need to assume in r plus 1th term this x to the power 10 is present. Okay, ठीक है। तो given twice x square minus 3 by x whole to the power 11 is the question. Let in r plus 1th term हम लोग एज्यूम कर रहे हैं r plus 1th term x to the power 10 is present। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि r plus 1th term में x to the power 10 है, हम लोग नहीं जानते, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ t r plus 1 कितना होगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं 11 c r twice x square whole to the power 11 minus r into minus 3 by x whole to the power r। ठीक है, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। 11 c r 2 to the power 11 minus r x to the power 2 into 11 minus r, फिर माइनस है -1 टू द पावर r 3 टू द पावर r बाई x टू द पावर r, है कि नहीं। मैंने तोड़ दिया एक बार। अब तोड़ने के बाद क्या है, t r plus 1 equals to 11 c r। यहाँ पर बाकी जो टर्म्स हैं उसको ऐसे की सेम रखो, नो नीड टू कैलकुलेट दिस थिंग, ओनली जो x रिलेटेड टर्म्स हैं उसके ऊपर ही हम लोग को करना है काम। तो दैट मीन्स ये और ये एज इट इज सेम रख दो, जरूरत नहीं है। अब इसमें आ जाओ, x टू दी पावर 2 बाहर है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 22 माइनस ट्वाइस r, 22 माइनस ट्वाइस r, नीचे क्या है x टू दी पावर r, सो -1 टू दी पावर r 11 c r 2 to the power 11 minus r into 3 to the power r into x to the power 22 minus twice r, डिवाइड होने से पावर माइनस होता है, वो r माइनस के ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, अच्छा अब आओ, t r plus 1 equals to -1 to the power r 11 c r 2 to the power 11 minus r 3 to the power r into x to the power 22 minus 3 r। That means मैंने तो बोला था कि r plus 1th term में x to the power 10 present है, x to the power 10 है, we assumed this thing, but here x to the power 22 minus 3 is coming। So that means what? We assumed that in r plus 1th term x to the power 10 is there, but this term is coming, so x to the power 10 or x to the power 22 minus 3r both are same होना चाहिए। यहाँ पर तो x to the power 10 होगा ना, assume किया है आपने, x to the power 10 ही होगा r plus 1th term में, तो that means x to the power 10 और x to the power this 22 minus 3r, उसको तो हम लोग सेम ही लेंगे, एज्यूम किया है तो सेम ही तो लेंगे। यहाँ पर तो x to the power 10 ही आना चाहिए, है कि नहीं। तो that means x to the power 10 आना चाहिए, बट आया है या, that means ये टर्म, that means both the terms are same। ओके, सो ये भी x के ऊपर पावर, ये भी x के ऊपर पावर, तो आपको 10 इक्वल्स टू पावर इक्वल लिख सकते हैं। That means r equals to 12, sorry, 3r equals to 12, that means r equals to I think 4, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे। ओके, सो फ्रॉम 1 r का वैल्यू मिल गया, फ्रॉम 1 t r, हर r के जगह वैल्यू बिठा, r plus 1 that is 4 plus 1, that means t5
equals to minus 1 to the power 4 11c4 2 to the power 11 minus 4 3 to the power 4 और ये तो x to the power 10 है, इसका आंसर तो x to the power 10 होगा, है क्या नहीं? तो 22 minus 3 into 4 क्या होगा 12, तो x to the power 10 ही होगा क्या? 22 minus 12 10. So T5 equals to minus 1 to the power 4 मतलब खत्म 11c4 2 to the power 7 into 3 to the power 4, यही होगा आपका कोफिशिएंट. ओके, सो कोफिशिएंट ऑफ x to the power 10 is, ये लिख लो 11c4 2 to the power 7 into 3 to the power 4. This will be the answer. So it is the actually very short method, but whenever I think if you if you expanded this this given expression using this binomial theorem, and after getting all the terms, you would get x to the power 10 in that expressions, and after that you could get the direct coefficient of x to the power 10 here. But I think if you used that process, the formal process, then I think the calculation process and the length of these solutions would be lengthy. Okay, so that's why I have used this process, and I think using this process any questions can be solved. Okay, x to the power 10 present hai. We assumed that in r plus 1th term x to the power 10 is there, and using this r plus 1 this expression is coming, and x to the power 22 minus 3r, this term this expression was coming. So I think according to the assumption x to the power 10 should have been present here, but here I think x to the power 22 minus 3r was coming. So we can write as this both the terms as equal. Using this equality we found r equals to 4, and after that in equation number 1 we have put the value of 4, value of r. We had got the coefficient of x to the power 10 very easily. So this process is very healthy and I think very useful also. So in this lecture just we have to stop here. In the next lecture we will solve this type of questions again. Okay, and till then stay safe and stay healthy. Okay, if you like my videos, if you like my lectures, then subscribe, like and share my channel. Okay, bye and Jai Hind.